میرا نام غلام دین ہے۔ میری عمر کے حساب سے یہ نام بہت بڑا محسوس ہوتا تھا کیونکہ میں تو ابھی 19 برس کا ایک نوجوان تھا، مگر حالات ایسے تھے کہ بچپن کا سہارا لینے کا وقت ہی نہ ملا۔ غربت نے اس قدر جکڑ رکھا تھا کہ نہ کھیلنے کودنے کا موقع ملا، نہ ہی بچپن کے خواب دیکھنے کی فراغت۔ ہمارا گھر کچی مٹی سے بنا ہوا تھا جس کی چھت پر پرانے اور بوسیدہ ٹاٹ کے ٹکڑے ڈالے گئے تھے۔ بارش ہوتی تو پانی اندر ٹپکتا اور گرمی میں یوں لگتا جیسے کمرے کے اندر آگ برس رہی ہو۔ میری بوڑھی ماں ہی میرا سب کچھ تھیں۔ وہی ماں تھیں اور وہی باپ بھی، کیونکہ میرے والد تو بہت پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ ہمارے پاس نہ زمین تھی، نہ جائیداد اور نہ ہی کوئی سہارا، بس ایک پرانی سی لکڑی کی ریڑھی تھی جس پر میرا مستقبل اور ماں کا سہارا قائم تھا۔ اس صبح ماں نے دال اور چاول پکائے۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر انہوں نے بڑی محبت سے کھانا بنایا اور کہا، بیٹا یہ بیچنا، انشاءاللہ رزق نصیب ہوگا۔ ان کی آنکھوں میں امید کی روشنی تھی مگر میرے دل میں ایک انجانا سا خوف، کیونکہ آج میرا پہلا دن تھا۔ میں ریڑھی لے کر نکلا۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہ تھا مگر گرمی ایسی تھی جیسے آسمان سے آگ برس رہی ہو۔ پسینے کے قطرے میرے کپڑوں کو تر کر رہے تھے، پھر بھی میں چلتا رہا۔ کچھ فاصلے پر ایک گھنا درخت دکھائی دیا۔ میں نے سوچا ذرا اس کے سائے میں رک جاؤں، سستا بھی لوں اور گاہکوں کا انتظار بھی کر لوں۔ درخت واقعی گھنا تھا، ایک لمحے کو سکون سا محسوس ہوا، مگر وقت گزرتا گیا اور کوئی بھی میرے پاس نہ آیا۔ لوگ دیکھتے اور آگے بڑھ جاتے۔ میرا دل بیٹھنے لگا۔ قریب ہی ایک بڑی فیکٹری تھی۔ میں نے سوچا جیسے ہی چھٹی ہوگی مزدور باہر آئیں گے، ضرور بھوکے ہوں گے، تب سارا کھانا بک جائے گا۔ آخرکار فیکٹری کی گھنٹی بجی، مزدور باہر نکلے۔ میرا دل خوشی سے دھڑکنے لگا مگر خوشی پل بھر میں مایوسی میں بدل گئی۔ سب میرے پاس سے یوں گزر گئے جیسے میں وہاں موجود ہی نہ تھا۔ میں پریشان ریڑھی کے ساتھ کھڑا تھا کہ ایک آدمی نے دور سے آواز دی۔ میں اس کے قریب گیا تو وہ بولا، بیٹا اگر تم یہاں کھڑے رہو گے تو کوئی تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ وہ بولا، یہ جو بڑا درخت ہے نا، لوگ کہتے ہیں اس پر جنات بستے ہیں، کوئی اس کے نیچے نہ رکتا ہے، نہ کچھ کھاتا پیتا ہے۔ یہ سن کر میں دنگ رہ گیا اور فوراً ریڑھی ایک طرف کر لی، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ دھوپ تیز ہو گئی تھی، کھانا خراب ہونے لگا۔ شام تک انتظار کیا مگر کوئی نہ آیا۔ یوں نہ صرف کچھ کمایا نہیں بلکہ سارا کھانا ضائع کر کے واپس آیا۔ گھر پہنچا تو ماں کے چہرے پر فکر اور آنکھوں میں نمی تھی، مگر میں نے خود کو تسلی دی کہ پہلا دن ہے، قسمت آزمائی جاری رکھوں گا۔ اگلے دن جب میں نکلا تو اچانک 7-8 لڑکیاں رنگ برنگے کپڑوں میں مسکراتی ہوئی نظر آئیں۔ ایک نے کہا، بھائی ایک پلیٹ لگا دو۔ میرے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے فوراً پلیٹیں تیار کیں، مگر یہ لڑکیاں عجیب تھیں۔ ایک نے 2 پلیٹیں ختم کر ڈالیں، کچھ نے 3 اور 4 پلیٹیں بھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ دبلے پتلے وجود کے ساتھ یوں کھا رہی تھیں جیسے کئی دنوں سے بھوکی ہوں۔ کھانے کے بعد جب میں نے پیسے گنے تو رقم زیادہ تھی۔ میں نے ایک لڑکی کو آواز دی، تم نے زیادہ پیسے دے دیے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولی کہ کھانا بہت مزیدار تھا، انعام سمجھ کر رکھ لو، اور اس نے میرے ہاتھ پر 3000 روپے رکھ دیے۔ میں نے منع کیا مگر وہ سب ہنستی مسکراتی چلی گئیں۔ اس دن جب میں پیسے لے کر گھر گیا اور ماں کے ہاتھ پر رکھے تو ان کی آنکھوں میں خوشی کی چمک دیدنی تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹا اب لگتا ہے قسمت کا دروازہ کھل گیا ہے۔ ماں نے اگلے دن اور زیادہ محنت سے کھانا بنایا۔ اب وہ لڑکیاں روز آنے لگیں۔ کبھی دوپہر سے پہلے ہی سارا کھانا ختم ہو جاتا۔ میرا کاروبار چل پڑا، ماں خوش تھیں اور میں بھی۔ مگر ایک دن عجیب واقعہ پیش آیا۔ میں اپنے دوست کی دکان پر گیا تو وہ کہنے لگا، اچھا ہوا تو آ گیا،
एक अजीब बात बतानी है। तेरी वीडियो वायरल हो गई है। मैं चौंक गया। मेरी वीडियो? उसने मोबाइल दिखाया तो मेरे होश उड़ गए। वीडियो में वही जगह नजर आ रही थी जहां मैं रोज खड़ा होता था। मेरी रेड़ी, सामने का पार्क, सब कुछ। मगर जब वो लम्हा आया जब लड़कियां मेरे पास खाना लेने आई थीं, तो वीडियो में कुछ और ही था। मैं बार बार प्लेट में खाना निकालकर आगे बढ़ा रहा था, कभी दाएं तरफ, कभी बाईं, कभी आगे, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। मैं हुआ को प्लेटें दे रहा था। वीडियो पर लिखा था, बेचारा गरीब लड़का गुर्बत के हाथों मजबूर होकर खाना बेचने की अदाकारी करता है। मैं सकते में आ गया। दोस्त ने गुस्से से कहा, गुलाम दीन, ये क्या है? क्या तो पागल हो गया है? मैंने फौरन कहा, नहीं, मैं पागल नहीं। वो लड़कियां हकीकत में मेरे पास आती हैं। मैं उन्हें खाना देता हूं। ये सब वही वक्त है। सुनो, पस मंजर में अजान की आवाज है। ये दोपहर का वक्त है। उस वक्त वो 8 लड़कियां मेरे पास मौजूद थीं। दोस्त ने दोबारा मोबाइल देखा और हैरानी से बोला। मेरे दोस्त ने खौफजदा लहजे में कहा, तो फिर इस वीडियो में वो लड़कियां क्यों नहीं दिखाई दे रही? तेरे गाहक आखिर कहां गए? मैंने फौरन जवाब दिया, वो 8 लड़कियां थीं, निहायत खूबसूरत और साफ सुथरी, वही जो रोज आती हैं। वो गुस्से से बोला, गुलाम दीन, यहां तो कोई एक लड़की भी नजर नहीं आ रही। न किसी का साया, न कोई आवाज और न ही कदमों की चाप। सिर्फ ताब है और तेरा खाना। ये सुनकर मेरे पास कहने को कुछ न था, लेकिन मैंने जिद करते हुए कहा, कल तो खुद मेरे साथ चल, छप कर देख लेना। वो जरूर आएंगी और तो अपनी आंखों से देख लेना कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो बोला, ठीक है, कल मैं तेरे साथ चिल्लूंगा और देखूंगा कि वो लड़कियां कौन हैं और कितनी हुसैन हैं जैसा कि तो कहता है। मैंने भी हामी भर ली। दिल में यही सोचा कि जरूर किसी ने वीडियो एडिट की है और लड़कियों को गायब कर दिया है। मगर दिल के किसी कोने में एक अनजाना खौफ भी जाग उठा था जिसे मैं खुद भी समझ न पा रहा था। अगला दिन आया। मैं सुबह सवेरे ही उठ गया। मां ने हसन मामूल दाल और चावल तैयार किए। उनके हाथों में चमक थी क्योंकि पिछले कई दिनों से हम अच्छी कमाई कर रहे थे। रेड़ी तैयार की और दिल में सोच रहा था, आज सब कुछ साफ हो जाएगा। दोस्त भी साथ होगा और हम साबित कर देंगे कि पहली वीडियो झूठी थी। वो लरसती आवाज में बोला, गुलाम दीन, तो पागल हो गया है। गुर्बत ने तुझे दीवाना कर दिया है। मैं हक्का बका रह गया। क्या मतलब? साफ साफ बता। उसने कांपते हाथों से मोबाइल आगे किया और कहा, ये देख। मैंने जैसे ही स्क्रीन पर नजर डाली, दिल की धड़कन थम सी गई। वीडियो में लड़कियों का कोई वजूद नहीं था। सिर्फ मैं था, मेरी रेड़ी थी और मेरे हाथ थे जो बार बार हुआ में प्लेटें बढ़ा रहे थे। कभी दाएं तरफ, कभी बाईं, कभी सामने, वो जैसे किसी नजर न आने वाली भीड़ को खाना दे रहा हूं। मैंने हैरत से दोस्त की तरफ देखा। इसके चेहरे पर खौफ और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। वो बोला, तूने मुझे इशारा किया और फिर अचानक प्लेटें भरने लगा। मैंने सोचा ये सब रिकॉर्ड कर लूं ताकि तुझे दिखा सकूं, मगर वहां कोई ना था। तो हुआ से बातें कर रहा था। मेरी जबान सूख गई। मैंने जेब से वो पैसे निकाले जो लड़कियों ने अभी मुझे दिए थे और उसके हाथ पर रख दिए। ये देख, ये वही रकम है। वो तंजिया हंसा। ये तेरे अपने पैसे हैं, मुझे बेवकूफ मत बना। मैंने घबराकर पतीलों की तरफ इशारा किया। ये देख, ये सब उन्होंने खाया है। वो सख्त लहजे में बोला, मुमकिन है तो घर से ही खाली पतीले लाया हो सकता है तो रोज यही ड्रामा करता हो। मैंने दबती हुई आवाज में कहा,
मुझे कौन सी बीमारी लग गई है जो दिन दहाड़े सड़क पर खाना खुलाने का ढोंग रचा है। मैंने अपनी आंखों से इन लड़कियों को देखा है, उनकी हंसी सुनी है। वो गर्दन हिलाकर बोला, कोई लड़कियां नहीं थीं? अगर होती तो वीडियो में नजर आती। फिर वो एक कदम पीछे हटा। इसकी आंखों में दहशत थी, जैसे मैं इस पर झपट पड़ूंगा। उसने मेरा कांधा झटका और कहा, तेरी मां पर क्या गुजरेगी जब उसे पता चलेगा कि इसका आखिरी सहारा बेटा पागल हो गया है। ये काम छोड़ दे, कोई मजदूरी कर ले, यहां मत आया कर। उसने घबरा कर उधर उधर नजरें दौड़ाईं, जैसे किसी से बच रहा हो। फिर अचानक पलटा और बगैर अलविदा कहे तेजी से दूर निकल गया। मैं रेड़ी लेकर निकला तो मेरा दोस्त पहले ही सड़क के कोने पर मेरा इंतजार कर रहा था। उसने कहा, आज जो भी होगा मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगा, और जब वो लड़कियां आएंगी तो मैं छप जाऊंगा ताकि उन्हें कोई शक ना हो। मैंने हाँ में सर हिलाया और हम दोनों इस जगह जा पहुंचे जहां मैं रोज रेड़ी लगाता था। धूप तेज थी मगर मेरे दिल में जोश था कि आज सब हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। दोपहर का वक्त करीब आया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ये वही लम्हा था जब वो लड़कियां आती थीं। अचानक मस्जिद से अजान की आवाज गूंजी और इसी लम्हे मुझे दौर से वही पुरानी खिलखिलाहट सुनाई दी। मैंने नजरें उठाईं तो वही 7-8 लड़कियां दिखाई दीं। रंग बरंगे लिबास पहने, खुशबुओं से महकती, जैसे हुआ उनके साथ खेल रही हो। मैंने इशारे से दोस्त को बताया, देख वो आ गई है, मगर उसने कोई जवाब ना दिया। मैंने ज्यादा ध्यान ना दिया कि कहीं लड़कियों को अंदाजा ना हो कि कोई और भी यहां मौजूद है। वो करीब आईं और एक ने हमेशा की तरह हंसते हुए कहा, कैसे हो भाई? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। जल्दी करो, खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ देता हूं। प्लेटों में जल्दी जल्दी दाल और चावल डालने लगा और उन्हें देने लगा। कोई एक प्लेट ले रहा था, कोई 2 प्लेटें। मैंने एक नजर पलटकर दोस्त की तरफ डाली। वो झक कर कुछ कर रहा था। गौर से देखा तो वो मेरा मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहा था। ये देखकर मुझे सुकून हुआ कि अच्छा है, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। कल सबको दिखा सकेंगे कि पहली वीडियो झूठ थी। लड़कियां फिर हस्न आदत बेतहाशा खाने लगीं। किसी ने 3 प्लेटें खाईं, किसी ने 4, और कुछ ही देर में मेरे दोनों बड़े पतीले तकरीबन खाली हो गए। बस 2 प्लेट बची थीं। मैंने वो भी दे दें। वो हंसते हुए बोले, हमें तो अब तुम्हारे हाथ के खाने की आदत हो गई है, लेट लग गई है। अगर तुम्हारे दाल चावल न खाएं तो चीन नहीं आता। ये सुनकर मेरे दिल को फख्र हुआ कि मेरा खाना इतना पसंद किया जाता है। वो हमेशा की तरह ज्यादा पैसे देकर हंसते मुस्कुराते रुखसत हो गए। मैंने खुशी खुशी हाथ हिलाया और रेड़ी समेटने लगा। जब सब काम खत्म कर लिया तो मैं दोस्त के पास गया। वो एक तरफ खड़ा कांप रहा था, चेहरे का रंग आड़ा हुआ था। मैंने कहा, क्या हुआ? तो क्यों यूं खड़ा? मां ने सांस भरते हुए कहा, बेटा ये चावल खत्म ही नहीं होते। कल भी मैंने बीच से डोई डाली थी और दाने निकलते ही चले गए। हालांकि हमने सिर्फ 2-2 किलो ही खरीदा था। इतने दिनों में तो कब के खत्म हो जाने चाहिए थे। मैं हैरान होकर किचन में गया। अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे दीवारों के अंदर कोई दूसरा मौसम कैद हो। मां ने चूल्हा एक तरफ करके अलमारी खोली और 2 पुराने बर्तन निकाले। एक में चावल थे और दूसरे में दाल। मैंने इन बर्तनों को छुआ तो लकड़ी की पुरानी लकीरें हथेली पर महसूस हुईं। उनकी गुंजाइश नजर से ही समझ आ रही थी कि बस 2 किलो से जरा ज्यादा। मां ने फर्श पर 2 बड़ी परात रखी जो चांदी की सी चमक लिए थी, जैसे किसी दरिया का किनारा हो। मां ने बर्तन में डोई डाली और चावल परात में बहने लगे। दाने खुश्क और खुशबूदार थे।
आवाज यूं थी जैसे हल्की बारिश बरस रही हो। कुछ ही देर में परात का निचला हिस्सा ढक गया। मैंने कहा बस काफी है, लेकिन मां ने फिर डोई डाली। दाने और निकले, फिर मजीद निकलते चले गए। अब परात आधी भर गई थी। मां ने बर्तन के तले को चम्मच से कुरेद कर देखा, मगर वहां फिर भी चावल मौजूद थे। आखिरकार परात मुंह तक भर गई। मैंने हाथ रखकर वजन देखा तो अंदाजा हुआ कि ये कम अज कम 5-7 किलो तो होंगे। फिर मां ने दाल वाले बर्तन की बारी दी। जैसे ही डोई डाली, पीली दाल परात में बहने लगी। खुशबू से किचन में एक गर्म लहर दौड़ गई। मां ने कई बार खुरच कर नीचे देखा मगर दाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं हैरत ज़दा फर्श पर बैठ गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ दीवार की घड़ी की टुक टुक सुनाई दे रही थी। मेरी जबान से निकला, ये मुमकिन नहीं। इतने छोटे बर्तन से इतनी मिकदार कैसे निकल सकती है।
क्या तुम हमें खाना खिलाओगे? मैंने लरजते हुए सर हिला दिया, जैसे मेरे पास और कोई रास्ता ही ना हो। मैंने आंखें बंद कर लीं इस उम्मीद पर कि जब खोलूंगा तो सब खत्म हो जाएगा, मगर जब दोबारा आंख खोली तो खुद को पसीने में भीगा पाया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे पसलियां तोड़ देगा। कमरे में हर तरफ अंधेरा महसूस हो रहा था, हालांकि बत्ती जल रही थी। मैंने चारपाई के पास झांका और सोचकर कांप गया कि शायद वो 8 लड़कियां अभी भी यहीं हों। उनके अल्फाज मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। हम जिनजादियां हैं, हमने तुम्हारी मदद की है और तुमने हमें शक में डाल दिया। मैंने दोनों हाथों से सर थाम लिया। दिल चाहता था कि मां को सब कुछ बता दूं, मगर सोचा कि वो कमजोर हैं, ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। और अगर मैंने किसी और को बताया तो लोग मुझे पागल कहेंगे, फिर ये सब मखलूक मुझसे नाराज हो जाएगी। मैंने फैसला कर लिया कि किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मां को भी ये कह दिया कि ये मैं ही चावल और दाल ज्यादा ले आया था। उन्होंने मान लिया और कहा, बेटा, मैं बूढ़ी हो गई हूं, बहुत सी बातें अब मेरी समझ से बाहर हो जाती हैं। मैंने उन्हें मुतमईन कर दिया, मगर खुद अंदर से खौफजदा रहा। रातों को नींद नहीं आती थी। इन लड़कियों के चेहरे, उनकी सुर्ख आंखें और वो पुरस्रार मुस्कुराहट हर वक्त मेरे सामने रहती थी। लेकिन वक्त गुजरता गया और उनकी मौजूदगी मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई। अब जब वो आती तो पहले जैसा खौफ महसूस न होता, सिर्फ एक हल्की सी बेचैनी रहती। उन्होंने एक दिन कहा, अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए हमें वसीला बनाया है, तुम फिक्र ना करो। ये सुनकर मेरा दिल बोझल सा हो गया और मैंने उनके आने को कबूल कर लिया। अब मैं खुद उनके लिए खाना तैयार रखता। रात के अंधेरों में वो आती, खाना खाती और चुपचाप चली जाती। मेरा कारोबार भी अच्छा होने लगा। मुझे लगता था कि शायद उन्हीं की वजह से बरकत आई है। मैंने कभी ये बात किसी को नहीं बताई, ना मां को, ना दोस्त को, क्योंकि जानता था अगर बताया तो वो सब नाराज हो जाएंगी। आज भी मैं मानता हूं कि जो मैंने अपनी आंखों से देखा, वो आम इंसान कभी नहीं देख सकता। वो 8 जिनजादियां मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश भी थीं और सबसे बड़ी मदद भी।